वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर इन स्पेस और इन 3 डायमेंशनस। और पेपर च पूछा जाता होंगे 3 डायमेंशनल इक्वेशन इज इक्वल टू यूनिटी। जब साडा क्वेश्चन जो पेपर च बनता उत्ते लिखा होंगे ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर इन स्पेस। In other words, you can say that drive an expression for 3-dimensional system having space vector components. So ਆਪਾਂ इस आर्टिकल ਨੂੰ प्रूव करना दोनों क्वेश्चंस ਦੇ ਲਈ। ठीक है, पहले ਆਪਾਂ इधर डायग्राम बनी ਇਹਨੂੰ समझने की कोशिश करते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-dimensional system ਆ, जिद्दां कि ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਹੁਣੇ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-dimensional ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3-dimensional ਸਿਸਟਮ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਐਕਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ 3-dimensional ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਡਰਾਈਵ ਫॉर यू, सो लिसन केयरफुली। दिस साइड वी गोइंग टू सिलेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ऑप्शनल होंदा वाई और जी नूं तुसीं इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भी इधर वाई एक्सिस ही होगा तो इधर जैड एक्सिस ही होगा। 3-dimensional सिस्टम का मतलब आई होंदा ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਓਰੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਪੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਆਰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਆਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਆਰ ਐਕਸ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਰ ਵਾਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਲੋਂਗ ਜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਜ਼ੈਡ, ਰਾਈਟ। ਆਰ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਹੋਪ ਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ इधर दोबारा चेक करियो। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं एक रैक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, रैक्टेंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ पी क्यू एक साइड और एल एंड एम अदर साइड एन एंड ओ। ठीक है जी, ये अपने को बन गई एक रैक्टेंगल। हुण सिंपल जी गल ध्यान नाल देखियो। पहले अलोंग एक्स एक्सिस दे नाल साडे कोल कंपोनेंट किहड़ा हुंदा आई कैप, आपां नूं पता है। अलोंग वाई एक्सिस दे नाल साडे कोल किहड़ा कंपोनेंट हुंदा है जी वैक्टर, ते अलोंग के दे नाल किहड़ा होऊगा फिर के वैक्टर। जे असी एंगल्स की गल करिए, वाई एक्सिस का पोजीशन वैक्टर वाली दे नाल बीटा एंगल बनता है। ठीक है जी, और एक्स एक्सिस विद रिजल्टेंट लाइन एंगल बनूगा एल्फा। सिमिलरली फॉर थर्ड लाइन इट विल बी गैमा। ठीक है जी, आ सिंपल जी डायग्राम आ। आपां कोई भी एक 3-dimensional सिस्टम लेने आ, उहदे च आपां एक रैक्टेंगुलर बॉक्स जिहड़ा वा वो कंसिडर करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਲ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ है जी, फिर मैं इनू ज्वाइन कर दूँगी। इन्नी चीज़ है सिंपल। फिर आप किया आपू पता जदों असी लेने एक्स एक्सिस उदों मेरे को एंगल किहड़ा होगा फिर एल्फा। जे एल्फा एंगल है तो वह कंपोनेंट किहड़ा होगा आई कैप। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस लै रहे हैं आप। ठीक है, सिमिलरली जदों मैं वाई एक्सिस दे नाल लैनी आ, इधर किहड़ा एंगल बनता मेरे को बीटा, इहदा कंपोनेंट किहड़ा होगा जे कैप। सिमिलरली इस लाइन दे नाल मेरे को जिहड़ा एंगल बनूगा सारी लाइन दे नाल ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਗੈਮਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਊਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਐਲ ਐਮ ਐਂਡ ਕਿਊ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ, ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਵੈਕਟਰ ਆਰ। ਹੁਣ आर की वैल्यू अगर आप कंसिडर करिए दैट विल बी 0p। ठीक है, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू O इंटू P। ठीक है, जिन्हों की आप कहने रिजल्टेंट वैक्टर और यू कैन से दैट पोजीशन वैक्टर इन केस ऑफ स्पेस कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। सो बच्चे आप नेक्स्ट लाइन लिखांगे वी यूज रिजॉल्विंग वैक्टर R
into the rectangular components along 3 dimensional system that is x axis y axis और z axis। ठीक है जी, सिंपल इन्नी चीज़ लिखनी है। फिर तुसीं लिखना टेकिंग ओ जिहड़ा वो अपने को ओरिजिन आ, आपां एक रैक्टेंगुलर पैलो पेपर ड्रॉ किया जिहदियां कि सारियां एजिज अपने कोल पैरल ने। ठीक है जी, एज वी सीन इन द डायग्राम। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सॉल्व करना। फॉर दैट वी राइटिंग लेट आर एक्स इज इक्वल टू वॉट, आपां आर एक्स कंपोनेंट लिया, ਉਹਦੀ वैल्यू की होगी ओ इंटू एम। ठीक है, ओ तो लेके एम तक अपने को काहदे बराबर रिजल्टेंट वैक्टर आर एक्स दे। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस दे अलॉन्ग ओ एन इज इक्वल टू आर वाई। सिमिलरली फॉर थर्ड साइड ओ क्यू इज इक्वल टू आर जेड। ठीक है जी, आ तीन साडे कोल सिंपल बेसिक वैल्यूज़ होणगियां जिहड़ियां आपां पहले लिखणियां। फिर आपां कहना कि आपां नूं पता बी द रैक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर इन 3 dimensional वी राइटिंग दीज अबव वैल्यूज़। राइट, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन अप्लाई करना। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ट्राईएंगल ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ O M and L। ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ट्राईएंगल दैट इज़ O L and M। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ट्राईएंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ। O M प्लस M L ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड आउट करनी है ना ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया, डायग्राम ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो मड़ा जिहा। मैं वैल्यू फाइंड आउट करनी है O ਤੇ L ਦੀ। जे मैं O ਤੇ L ਦੀ फाइंड आउट करनी वैल्यू, मेरे को ट्रायंगल हैगी किहड़ी ही O L ਤੇ M। आ चीज़ की मैं वैल्यू कढ़नी है। ਇਹਦਾ मतलब काहदे बराबर होगी, बेस दैट इज़ O M प्लस M L इज इक्वल टू दिस वन लाइन। ठीक है जी, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन। ओके, अगर मैं हुण इहनूं थोड़ा इंटरचेंज करना है, क्यों करना है, क्योंकि देखो इधर मेरे को बनता पाया M और L। डायग्राम नूं ध्यान नाल देखो, आपां कह दियां सारियां साइड्स पैरेलल आ। इफ ऑल साइड्स आर पैरेलल दैट मीनस M L विल बी इक्वल टू Q इंटू O इंटू Q। दैट मीनस O M प्लस आप इनू रिप्लेस कर देना कि O Q दे नाल, काहदे इक्वल होगा O L दे। ठीक है, फिर मैं इत्थे लिखा भी है बिकॉज M L इज इक्वल टू O Q, राइट इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, एक चीज़ होर बच्चे ध्यान नाल देखो, अपने कोल जिहड़ी ट्रायंगल बनती आ O M L, इत्थे अपने को 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का। अगेन मैं अप्लाई करना है O, एक मैं अगेन कंसिडर करनी है O L ते P। हुण मैं इन्नी ट्रायंगल लैनी है। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਤੇ भी अप्लाई करना वा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सिमिलर इत्थे अप्लाई होगा O L प्लस L P। आ दोवें चीज़ों का सम काहदे बराबर होगा, तीसरी लाइन दे। ठीक है, ओके बन गया O L प्लस L P इज इक्वल टू O P। अगेन आपां नूं पता पुत्र देखो L P काहदे इक्वल हो रहा मेरे को O एंड N दे। आ दोवें चीज़ां पैरेलल आ ना, दोनों लाइनस पैरेलल आ। ध्यान नाल देखो P L L P O ते N दोवें बराबर है ना। डैट मीनस आप कह सकते हैं फिर L P की जगह तो लिख सकते हैं O N। की बनूगा O L प्लस O N इज इक्वल टू O P। इतने बिकॉज करके लिखा भी गया वा भी L P इज इक्वल टू O N। इनू मैं लिखता इक्वेशन नंबर 2। हुण आपां की करना, O L की वैल्यू पुट करनी आप इक्वेशन नंबर फस्ट दे विच। ठीक है जी, इन इक्वेशन 2 आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देनी है दोनों दियाँ। जदों आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी है, ध्यान नाल देखो O L की वैल्यू कढ़ ली आप। ठीक है, उन्होंने पुट कर देना। अपने को की बनू इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 कि आ, यानी कि O M भी इदा ही प्लस O Q भी एज इट इज़। कि वैल्यू पुट करनी मैं O L दी। ठीक है, O L की वैल्यू मेरे को काहदे बराबर आ, इत्थों पता लग जाना आपको काहदे बराबर आ, O N इज इक्वल टू O P। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखियो आ मेरे को एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन तो बाद पुत्र आप स्टार्टिंग एक चीज़ गई ही कि O M काहदे बराबर हुंदा, R X दे। O Q काहदे बराबर हुंदा है, R Y दे। ठीक है, O N काहदे बराबर R Y दे, O Q काहदे बराबर R Z दे। ਇਹਦਾ मतलब इन्हां तिन्नां फैक्टर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्लेस कर सकते काहदे नाल, R X R Z एंड R Y। ठीक है, एक चीज़ फिर आपां नूं पता, ਆਪਾਂ शुरू 'ਚ एक गल कही कि O P एक अपने कोल लाइन बनती आ, वो काहदे बराबर हुंदी हमेशा रिजल्टेंट वैक्टर R दे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ जगह ते अपने को की आ जाना फिर R। ठीक है, हुण जे मैं इत्थों R की वैल्यू कढ़नी है, सारा फैक्टर S बने आ जाना एज इट इज़ ही। इत्थों तक क्लीयर आ। उदों अगे देखो बच्चे, मैनू पता अगर आप X
डायरैक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो कंपोनेंट होंदा आई कैप। सिमिलरली फॉर वाई डायरैक्शन वी कंसिडर द कंपोनेंट इज ए कैप, सिमिलरली फॉर जी एक्सिस, राइट। सो आप लिखदा वेयर आर एक्स आर वाई एंड आर जेड आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ आर एक्स आर वाई आर जेड वैक्टर्स रिस्पैक्टिवली एंड आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वैक्टर्स along x y and z एक्सिस रिस्पैक्टिवली, राइट। जिहड़ी मैं लाइन लिखाई इहदा की मतलब आ, असीं क्या वा कि जिहड़े मैगनीट्यूड हुंदे आ तिनों कंपोनेंट्स दे तिनों डायरैक्शन दे अलॉन्ग ऑलवेज इज इक्वल टू यूनिटी। वॉट इट मीनस द मैगनीट्यूड ऑफ x डायरैक्शन दैट इज आई कैप इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ y डायरैक्शन दैट इज जे कैप इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ z डायरैक्शन दैट इज के कैप। टोटल these three factors will be equal to 1, right? So hence proved over there. So we're going to continue our derivation. Next we consider with I cap, J cap and K cap. These are perpendicular to each other as we seen in this figure. I cap and J cap and K cap, these are perpendicular to each other, right? If they are perpendicular to each other, again we consider right angle triangle, that is O, L and M, right? If we consider the right angle triangle O, L and M, we are going to find out the value of O, L square, right? That is equal to, again according to our previous article, O, L is equal to O, M plus M, L. That's why I am writing O, L square is equal to O, M square plus M, L square. Why? Because triangle, right angle triangle O, M, L is equal to 90 degree. Write it as equation number 3rd. Similarly, we again consider another right angle triangle, that is O, L, P. Here we going to find out the value of OP square, that is equal to, if we going to find out the value of OP square, this will be equal to OL square plus LP square, ठीक है। आही चीज़ आप पिछे पढ़ी है ना, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कादे बराबर होगी, सम ऑफ अदर टू साइड्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी राइट OP square is equal to OL square plus LP square. Write it as equation number 4. Okay, so from equation 3rd and 4th we write OP square is equal to OM square plus ML square into LP square, ठीक है जी। ओके पुत्र ध्यान ना देखियो, अपने को दो इक्वेशनस आ, ओ एल स्केयर की वैल्यू कढ़ी असी ओ एम स्केयर प्लस एम एल स्केयर, सिमिलरली ओ पी स्केयर की वैल्यू कढ़ी आप ओ एल स्केयर प्लस एल पी स्केयर, ठीक है। हुण आप फ्रॉम इक्वेशन 3 ते 4th तो मैं ओ पी स्केयर की वैल्यू कढ़नी है, कादे बराबर आनी है ध्यान ना देखियो। ओ एल स्केयर लिखने की मैंने लोड़ नहीं क्योंकि उपर मैं कढ़ ली ना उसकी वैल्यू, फिर मैं यदी जगह तो सीधी आ वाली वैल्यू लिखनी आ, ठीक आ। तो आ जोड़े वा इन्हें एज इट इज़ ही आना, फिर मेरे को इक्वेशन की बनूगी, वो लिखूँगी मैं ओ पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर इंटू एल पी स्क्वायर, आही चीज़ बनूगी ना, ठीक आ। उही चीज़ इत्थे बनी हुई है, ध्यान नाल देखो, ओ पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर इंटू एल पी स्क्वायर, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस इक्वेशंस आई एम गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एम एल विद ओ क्यू एंड एल पी विद ओ एन। पिछे आप डायग्राम तो वैल्यूज़ कढ़िया ना, एम एल बराबर होंदा ओ क्यू दे, एल पी बराबर होंदा ओ एन दे, ठीक आ। फिर वो दोनों वैल्यूज़ मैं इत्थे पुट कर देनी है, फिर मेरे को की बनूगा ओ पी स्क्वायर की जगह तो मेरे को ओ क्यू हो जाऊगा, ठीक आ। तो एल पी की जगह तो मेरे को किहड़ी चीज़ आ जाऊगी ओ एन, की बन गई इक्वेशन ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ इदा ही एम एल की जगह तो ओ क्यू, एल पी की जगह तो ओ एन, ठीक आ। डायग्राम देखो पुत्र एम एल अपने कोल इक्वल आ ओ क्यू दे, ठीक आ, और एल पी अपने कोल इक्वल आ एन पी दे जां ओ एन दे, जिवें मर्जी ला लो एन ओ ओ एन, ठीक आ। दैट्स वाई वी राइट ओ एम इज़ विद वी राइट ओ एम इज़ इक्वल टू ओ क्यू, एम एल इज़ इक्वल टू ओ एन, ठीक आ। हुण स्टार्टिंग च आपां एक चीज़ पढ़ ली है पुत्र, ओ पी का बराबर आ आर दे,
ओ एम काहदे बराबर ही आर एक्स दे, ओ क्यू काहदे बराबर आ आर जैड दे, ओ एन काहदे बराबर आर वाई दे। पर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਓ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਰ ਦੇ, ਓ ਪੀ ਸਕੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਓ ਐਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਰ ਦੇ, ਓ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਆਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ। ਓ ਕਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਰ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓ ਕਿਊ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਜੀ ਸਕੁਅਰ। if o n is equal to r y, that means o n square will be equal to r y square, right? so ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ x y z, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ z ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, y ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਇਹਨੇ ਐਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਆਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆ ਨੀਚੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਆਰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਰ ਇਨ ਸਪੇਸ। ठीक है, it can be specified either by its magnitude और by its components। ठीक है जी, सिर्फ इन्नी लाइन लिखनी है, उसके बाद तुसीं कह देना the component quantities r x r y r z will be equal to r x I cap r y j cap and r z k cap। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ, ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਐਕਸ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਆਰ ਕੋਸ ਆਫ ਥੀਟਾ, ਆਰ ਵਾਈ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਆਰ ਕੋਸ ਆਫ ਬੀਟਾ, ਆਰ ਜ਼ੈਡ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਆਰ ਕੋਸ ਆਫ ਗਾਮਾ। ਜ਼ੈਡ ਆ ਗਾਮਾ ਐਂਗਲ, ਵਾਈ ਆ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ, ਐਕਸ ਆ ਐਲਫਾ ਐਂਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ 1 2 3, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਰਾਈਟ? फिर लिख दोगे हेयर कॉज एल्फा कॉज बीटा एंड कॉज गामा आर कॉल्ड डायरैक्शन कोसाइंस ऑफ आर। इन्हों आप डायरैक्शन कोसाइंस कहने कि ये रिजल्टेंट वैक्टर दे। अगर मैं स्क्वेयरिंग करके ऐड करा इन्होंने तिना इक्वेशनस नूं, तुसीं लिखोगे ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव, इन्होंने तिना दे स्क्वेयर होणगे पहले, वो बनूगी इट विल बी आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जैड स्क्वेयर इज़ इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू पुट करो, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਆਰ ਐਕਸ ਕੋਸ ਐਲਫਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਕੋਸ ਬੀਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਕੋਸ ਗਾਮਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕੋਸ ਐਲਫਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਬੀਟਾ, ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਗਾਮਾ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਬਚੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਸ ਸਕੁਆਇਰ ਐਲਫਾ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ऑल राइट, सो अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आ सारा फैक्टर मेरे को इस साइड आ जाऊगा। की बनूगी चीज़ इत्थे मेरे को सेम ही चीज़ रहनी है आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जेड। ठीक है, हुण जे मैं इस चीज़ की वैल्यू कढ़नी है, की बनूगी कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा काहदी इक्वल हो जूगी आ सारी इक्वेशन अपन पता जो आप किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, जोड़ा अखर वो नाल लगा होंदा हमेशा बटे के नीचे लिखी दा डिनोमीनेटर च। जे इन्होंने डिनोमीनेटर च लिखना तो मतलब जी इस साइड इक्वल टू तो दूसरे बने वो सारी उपर आ जाएगी न्यूमीनेटर च। ठीक है, हुण एक चीज़ असीं पिछे पढ़ी आ ध्यान नाल, जे तुहानूं याद होवे ते कि आर बराबर ही आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जैड दे। इहदा मतलब फिर आर स्केयर काहदे बराबर होगा आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर प्लस आर जैड स्केयर। इत्थे लिखना भी है तुसीं नाल बिकॉज आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जेड। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ जगह तो मैं की लिख सकती फिर आर स्केयर। आ सारी इक्वेशन काहदी इक्वल हो जाएगी आर स्केयर प्लस आर स्केयर। आर स्केयर ना आर स्केयर कटिया जाऊगा, की आऊगा इतने 1। ਇਹਦਾ मतलब की बनूगी कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1। इनू कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरैक्शन कोसाइन ऑफ वैक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। अगेन वी गॉट अ न्यू स्टेटमेंट ऑफ दिस डेरिवेशन, राइट? की है वो ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर स्केयर ऑफ डायरैक्शन कोसाइन ऑफ वैक्टर इज यूनिटी। जहाँ फिर पेपर च पूछा जा सकता है प्रूव दैट
ਸਮ ਆਫ ਸਕੁਐਰਸ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।